going to start with what is an ideal gas equation. Probably in your chemistry classes, you might have studied that for any given mass of a gas, the pressure, volume, and temperature of gas are dependent upon each other. And this is an experimental observed equation that relates the pressure, volume, and temperature of gas, and this is often referred as equation of state. And this equation happens to be PV is equals to mu RT. Instead of N, I prefer to write it as PV is equals to mu RT. Is that clear? So this here the term P stands for the pressure of the gas, V stands for the volume occupied by the gas, T is the absolute temperature of the gas, and mu over here happens to be the number of moles of the gas. Now, instead of in chemistry, most of the time you might have observed instead of mu, you would have found N to be mentioned over there. So take care. I'm not using N because I have already utilized N in order to depict the number of molecules. So instead of instead of that N, I'm using mu to illustrate you the number of moles of the gas. And R happens to be universal gas constant, which is 8.31 joule per mole Kelvin, okay, per mole per Kelvin. So this particular equation that just now I've told you is of utmost importance for us when we are talking about kinetic theory of gases. So please take care about this particular equation, which is called as ideal gas equation. Now, already in physics, we have derived the expression of pressure in our previous discussion, and this expression of pressure came out to be P is equals to 1 by 3 mn into V square. I hope you know the meanings of the symbol. Capital P stands for the pressure of exerted by the gas on the walls of the container. Capital V is the volume occupied by the gas, which eventually happens to be the volume of the container. This small m happens to be the mass of the molecule constituting that ideal gas, and capital N happens to be the number of molecules present in that particular gas. And this V square, by this time I hope you all know about this V square. What is this V square? This is the mean of the square of the velocity of all the molecules that are moving inside that particular gas. So remember, this is the square of the mean. Sorry, this is the mean of the square of the velocities of the gaseous molecule constituting our ideal gas. So these terms are very well known to you all. What I'm going to do, I'm going to transpose this V, this volume from here, and take it on this end. Okay. The moment I do this part, this becomes PV. Now PV is equals to 1 by 3 m into n into V square बच्चों. अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन इस पीवी को डिफाइन करती है कि पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आरटी. याद है अभी हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन की बात करी थी. तो पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आरटी. तो मैं कर क्या रहा हूं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. So from ideal gas equation, I have already got PV is equals to mu RT. What is mu? Mu happens to be the number of moles of the gas. And instead of PV, what I have done, I have replaced it by mu RT in this equation. So I've got mu RT is equals to 1 by 3 mn into V square. Now, for 1 mole of a gas, now this is what I'm taking it with the help from the help of chemistry. कि किसी भी आइडियल गैस का अगर मैं 1 मोल गैस लेता हूं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे उस गैस के वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो जाएंगे. तो n जो अब होगा वो हमारा Na के बराबर हो जाएगा बच्चों. दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर. और अब चूंकि m इंटू n जो था, अब चूंकि n फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस n इज इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर, तो m इंटू Na, that is the total mass of the gas, now becomes equal to gram molecular mass. अब बच्चों ध्यान देना, यहां पर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. फिजिक्स में ग्राम मॉलिक्यूलर मास की कोई भी जगह नहीं होती. तो जब मैं न्यूमेरिकल्स में जाऊंगा तो इसे मुझे इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास को केजीज में यानी एसआई यूनिट्स में लाना होगा. तो
हम अभी तो फॉर्मूले में कैपिटल एम लिख रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में इस कैपिटल एम की मीनिंग है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जब मैं इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकली सॉल्व करने जा रहा हूं, प्लीज टेक केयर दैट डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम। और कितना वॉल्यूम होता है बच्चों गैस का, कितना वॉल्यूम 1 mole of a gas occupy करती, that happens to be 22.4 liters. Now I am assuming that all these basics are well known to you all from the chemistry part. So बच्चों जब हमने 1 mole of a gas को कंसिडर कर लिया तो म्यू हमारा 1 हो गया, और ये जो n है ये Na हो गया, और m इंटू n जो है अब वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, जिसको मैं कैपिटल m से डिनोट कर दे रहा हूं। कैपिटल M स्टैंड फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नाउ शुड बी लुकिंग लाइक टू यू एज RT इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू n की जगह कैपिटल M आ गया, दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू v स्क्वायर। अब मैं छोटा सा ट्रांसपोजिशन फिर से कर रहा हूं, इस 3 को टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3RT, और इस m को नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 3RT/m। और बच्चों जो ये v स्क्वायर अब आ गया है, इसका मैं रूट ले लूंगा, और जैसे ही मैं रूट लूंगा तो ये हमारे लिए क्वांटिटी बड़ी मीनिंगफुल क्वांटिटी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो VRMS स्पीड या VRMS वेलोसिटी का नया फॉर्मूला आ जाता है 3RT/m। तो ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है RMS स्पीड का 3RT/m। और बच्चों इस फॉर्मूले में जब कभी भी आप VRMS फाइंड कर रहे हो तो प्लीज डू रिमेंबर that this capital M stands for gram molecular mass. So whenever you are going to solve it, please ensure that this is going to be converted into kgs. Please take this particular care. Many of the numerical problems the students often get it wrong because of this thing. Achha. Let's move on to the next part of it. If you see, this VRMS is going to be directly proportional to the temperature of the gas and inversely proportional to the mass of the gas. ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। दैट मीन्स किसी भी आइडियल गैस की जो VRMS है वो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा गैस का, मॉलिक्यूलर मोशन उतना ज्यादा स्पीड अप होता जाएगा। तो जितना हायर टेम्परेचर उतना ही तेजी से मॉलिक्यूल्स मूव करता होगा। और इसलिए बच्चों ध्यान रखना कि किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो सीधे सीधे उस गैस के मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में हमें जानकारी देता है। गैस एट अ हायर टेम्परेचर has got molecules moving at a higher and higher speed. So kindly take care about this part, and that is what is important for you all to understand it as the kinetic interpretation of temperature. कि temperature represent क्या कर रहा है? Temperature basically molecular motion को represent कर रहा है। अब यहीं से एक टेम्परेचर स्केल डिफाइन होता है जिसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। और इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का जो 0 है वो 0 केल्विन। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की जो यूनिट है वो केल्विन है, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का 0 है वो इस बात को बताता है कि भाई अब हमारे मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो कंप्लीटली स्टॉप हो गया। तो इसमें 0 केल्विन जब कभी भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब है ऐसा टेम्परेचर जहां पे टोटल मॉलिक्यूलर मोशन comes to standstill, comes to rest, comes to stop, comes to a halt. तो वो टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मोशन स्टार्ट होता जाएगा, और वहां से अब आपके पास मॉलिक्यूल्स के पास जब मोशन होगा तो वही मोशन मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप को टेम्परेचर के फॉर्म में बच्चों। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग kinetic interpretation of temperature कहते हैं। Let's now come back again to this particular thing. तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन था, म्यू 1 मोल रखा है, n की जगह Na आ गया, याद है, और यहाँ पे म्यू कितना हो गया बच्चों, ये 1 मोल हो गया। तो अब एक्सप्रेशन में देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, RT, और इस n को मैं यहां ले आया तो RT/Na। अब देखो ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और Na क्या है, एवोगाड्रोस
कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं और इन दोनों कांस्टेंट का जब मैं डिवीजन करता हूं तो ये डिवीजन एक नया कांस्टेंट देता है जिसको मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहूंगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूं। द मोमेंट आई मल्टीप्लाई इट बाय 2 and divide it by 2 and I bring these things together, you can see this is nothing but half mv square। और बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का है, m जो था मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल था। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारे लिए बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब चूंकि ये एक मॉलिक्यूल का नहीं है, क्योंकि v स्क्वायर आपने ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का लिया था, एवरेज लिया था, तो अब मैं इसको कहूंगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो दिस एक्सप्रेशन नाउ गिव्स मी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर इन अंडर द मोशन। एंड आई जस्ट नॉट टोल्ड यू कि जैसे r by na ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट आता है जिसको मैं कह रहा हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसको सिंबल k से डिनोट करता हूं। और तो ये स्मॉल k से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। तो ये on the left hand side of the equation you will get kt is equals to 2 by 3 times of kinetic energy, or simply the kinetic energy expression comes out to be 3 by 2 kt, and this kinetic energy is the average kinetic energy of the molecules which are in motion. And if you see, this kinetic energy is totally dependent on the absolute temperature, और किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट आ रही है बच्चों। भाई 3/2 खुद कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस का वो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डिफरेंट गैसेस वुड हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। तो चाहे तुम ऑक्सीजन ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, या कोई भी गैस ले लो, अगर इन गैसेस का टेम्परेचर एक समान है तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, सारे गैसेस की एक बराबर हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। इज दिस मच क्लियर टू ऑल? सर एक चीज बताइए, the equation that you have already studied was derived from the chemistry, that was PV is equals to mu RT। याद है? यही तो आइडियल गैस इक्वेशन थी जिसको हम लोग लेके चल रहे थे बच्चों। अब ये इक्वेशन तो हमने केमिस्ट्री से बोरो कर लिया, और केमिस्ट्री में म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स है, फिजिक्स में मोल्स के बजाय हम ज्यादातर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करते हैं। तो अब हम यहां पर इसी इक्वेशन का एक इक्विवेलेंट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, which is known as ideal gas equation in physics. Okay, now this is the equation that we have got from the kinetic theory of gases, that is PV is equals to 1/3 mn into v square, isn't it? इसको मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, और अब ये बन गया 2/3n into half mv square। कोई कंफ्यूजन किसी को? और अगर तुम इसको देखो तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स था। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तुमने पीछे डिराइव किया, क्या निकल के आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी केम आउट 3/2 kT, 3/2 kT। अब मैं इस जगह पर इस PV इज इक्वल्स टू 2/3n और इस चीज की पूरी चीज को 3/2 kT से रिप्लेस कर दे रहा हूं। 2 and 2 goes off, 3 and 3 goes off. So the expression that now you have in your hand is the ideal gas equation from the physics perspective, where you are not having the number of moles, rather you are having the number of molecules, which we have defined in our earlier class. Now P again is the pressure exerted by the gas, V happens to the volume occupied by the gas, T happens to be the temperature, N happens to be the number of molecules, and K happens to be the Boltzmann constant. Now Yaya and others, everybody needs to understand in this particular equation and thereafter also. If you see, I'm not saying volume of the gas. Can you see this expression that what I am writing? बच्चों ये V का आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन?
अगर तुम Yes, sir. ध्यान से देखो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मैं क्या कह रहा हूं, V is the volume that the gas occupies. It takes the volume of the V is volume occupied by gas. जी जी, तो ये ध्यान रखना है आपको, टेक्निकल टर्म्स को मीनिंगफुल टर्म्स है ये, इसको जस्ट ओवरलुक कर दोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं बच्चों. Here you can see probably on the screen, I've tried to show you an ideal gas. This ideal gas is enclosed inside a cylinder, rather cylindrical piston. So this is a piston, and this piston can move smoothly, so there is no friction existing between the walls of the container and between the wall of the piston, and it contains some gas. Can you see there is a gas, and these are the gaseous molecule, and how many number of molecules is capital N number of molecules. The pressure that this ideal gas molecules will exert on the walls of the cylindrical vessel will be P, the volume will be V, and temperature of the gas is T, which is representing the molecular motion of these molecules. Is that okay with everyone? Yes, Now, sir. now there Okay. are certain terms that you need to understand while handling thermodynamics. अब जैसे तुमने एक आइडियल गैस की डेफिनेशन समझी थी, वैसे अब कुछ और टर्म्स है जिनको तुम्हें समझना पड़ेगा. तो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स के, तो एक टर्म आएगा, तुम बार बार सुनोगे भाई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम या सिंपली सिस्टम. तो ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम या सिस्टम होता क्या है? तो ये बेसिकली एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है, और हमारे लिए ये मैटर क्या है? दिस इज गोइंग टू बी एन आइडियल गैस. नाउ अगेन रिमेंबर आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू आइडियल गैस, which is enclosed inside some vessel, some boundary. So there must be a predefined boundary. तुम देख सकते हो ये गैस किसी एक वेसल के अंदर enclosed है और उसकी ये predefined तुम्हारे पास बाउंड्री, ठीक. इसी चीज को मैं नाम दे रहा हूं सिस्टम का. अब इस केस में ये जो बाउंड्री है उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है और ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, यानी फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. तो ये दिमाग में रखना है कि पूरा सिस्टम जो है उसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन इफेक्टिव नहीं हो रहा. तो ये बात हो गई तुम्हारी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बारे में. मैटर, सम सॉर्ट ऑफ मैटर डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल बाउंड्री. देयर नीड्स टू बी सम मैथमेटिकल बाउंड्री दैट शुड डिफरेंशिएट कि ये मैटर इसके अंदर है और इसके बाहर जो कुछ भी होगा बच्चों उसको हम कहेंगे सराउंडिंग. यानी अगर मैं इसी डायग्राम में वापस जाऊं तो ये तो हमारा सिस्टम का पार्ट हो गया, और इसके बाहर जो कुछ भी मिल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? बाउंड्री कहते हैं. सॉरी, उसको हम सराउंडिंग्स कह रहे हैं. बाउंड्री तो ये सारी चीजें बाउंड्री हो गई. ये जो वॉल है ये बाउंड्री की तरह बात काम करेगा, और उसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या हो गया हमारे लिए? सराउंडिंग्स बन गई. So you need to understand the definition, and this is what I'm going to call it as system. So this is what we are talking, and this you need to understand when the moment I'm talking about thermodynamical system. अब जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको ध्यान देना है वो होगा थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स. जैसे तुमने मोशन पढ़ रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ऐसे वेरिएबल्स आते थे. इसी तरह से जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे बच्चों, तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाने के लिए जो वेरिएबल्स मैं इस्तेमाल में लाऊंगा वो वेरिएबल्स होंगे प्रेशर. अब देखो प्रेशर कहां से आ रहा है? वो प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू V स्क्वायर अपॉन V. अब उन सारी चीजों का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था उसको मैं छोड़ दूंगा. अब मैं एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल के टर्म्स में बात करने जा रहा हूं जो कहलाएगा उस गैस का प्रेशर. फिर दूसरा चीज होगा जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे वो होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस. कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस? दैट विल हैपेंस टू बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. तो जो दूसरा वेरिएबल जो हम लोग कॉमनली यूज करेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स में वो हो जाएगा वॉल्यूम. तीसरा होगा टेम्परेचर. अब टेम्परेचर क्या बता रहा है? दैट्स गोइंग टू टेल मी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स.
तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी के बजाय हमेशा दिमाग में लाऊंगा ये टेम्परेचर क्या है। तो ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है कि मास हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सेट ऑफ वेरिएबल्स को हम कहेंगे अपने डिस्कशन में थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब कोई भी जब मैं कहूंगा कि देयर इज अ स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, जब मैं स्टेट वर्ड बोलूंगा तो तुम्हें समझना होगा कि स्टेट किसके टर्म्स में डिफाइन होगा। स्टेट का मतलब हो गया कि भाई गैस का क्या प्रेशर है, इस आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, और आइडियल गैस का क्या टेम्परेचर है। तो जब मैं ये तीन वेरिएबल समझ लूंगा, यानी प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, तो मुझे समझ में आ जाएगा गैस का ये स्टेट है। जब तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पा रहे हो उसमें लिख रहा है कि भाई फाइंड द स्टेट या द आइडियल गैस इज डिफाइंड बाय द स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या हो गया कि उसका तुम्हारे प्रेशर बताने की कोशिश की जा रही है, उसकी वॉल्यूम बताने की कोशिश की जा रही है, और उसका टेम्परेचर क्या है वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो टर्म्स है पी, वी और टी, ये डिफाइन करेंगे उसकी स्टेट की, थर्मोडायनेमिकल स्टेट के बारे में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म तुम्हारे सामने आता है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे अभी हमने कहा ना आइडियल गैस की इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस इज पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, या पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी। याद आ रहा है ये क्या कह रहा था? इक्वेशन ऑफ स्टेट कह रहा थी। यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन बच्चों जो कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वगैरह को आपस में कोरिलेट करती है, उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। So any mathematical equation or expression relating these thermodynamical variables that you studied, that I just now defined, pressure, volume and temperature, is going to be called as equation of state. अब फिर एक टर्म आएगा तुम्हारे पास, ये प्रोसेस। जैसे धीरे धीरे करके पढ़ोगे आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो प्रोसेस का वर्ड का माने क्या होता है? कोई भी ऐसा मैकेनिज्म, कोई भी ऐसा मेथड जिसकी मदद से मैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज कर सकूं, यानी जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स उनको मैं चेंज कर सकूं, कोई भी ऐसा प्रोसेस, उसको हम लोग नाम देते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So these are some of the terms which we are going to often use in our discussion. So you need to understand these terms very, very clearly. अब एक और टर्म तुम्हारे सामने आएगा, इंडिकेटर डायग्राम या सिंपली पीवी डायग्राम। कई बार इंडिकेटर डायग्राम कह के तुम्हें क्वेश्चन पेपर में मिलेगा या टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, और कई बार इसी चीज को हम लोग पीवी डायग्राम भी कहते हैं। अब ये पीवी डायग्राम क्या होता है? ये जो पीवी डायग्राम है, दैट इज द ग्राफ दैट आई ड्रॉ, या दैट वी विल बी ड्रॉइंग with pressure on the y-axis and the volume on the x-axis. That is what is going to be known as PV diagram. और इसमें कोई भी एक कोऑर्डिनेट या एक कोई भी पॉइंट या कोई प्लॉट हमारा थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ पॉइंट blinking onto the graph. This particular point would be representing some pressure, corresponding to some pressure. This will be some pressure represented by this very plot, and then there will be some volume that it's going to represent. Some volume will be represented, and there will be some temperature of the gas. So this pressure, volume and temperature are going to represent the स्टेट ऑफ आवर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो ये जो पीवी या इंडिकेटर डायग्राम है, उसके ऊपर सिचुएटेड कोई भी कोऑर्डिनेट हमें थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करता हुआ दिखेगा बच्चों। ये जो लाइन तुम देख रहे हो, ये जो कर्व मैंने खींचा, इस कर्व को हम लोग कहेंगे आइसोथर्म। और ये आइसोथर्म क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे खींची हुई लाइन है, यानी इस जगह पर, इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे टेम्परेचर जो है गैस की एक ही है,
T is always going to represent the same, is going to remain the same. तो हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, लेकिन उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है। मैं यहां से थोड़ा ऊपर चला जाऊंगा तो दूसरा आइसोथर्म खींच दूंगा तो इसका टेम्परेचर बदल जाएगा T1, यहाँ पे इसका टेम्परेचर मैं कहूँ T1 तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा अब T2। तो अब इसके ऊपर सिचुएटेड कोई पॉइंट्स फिर से, तो इस तरह से ये जो आइसोथर्म्स होंगे ये अलग अलग टेम्परेचर को गैस की डिफाइन कर रहे हैं, और इनके ऊपर सिचुएटेड इस प्लॉट, कोई भी प्लॉट उसके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि जो ये आइसोथर्म के अंडर जो तुम्हें एरिया मिलेगा बच्चों, वो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि यहां से लेकर ये पूरा एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया मिलेगा ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होगा वर्क डन, ठीक है। तो किसी भी तरह के प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा वो कहां से मुझे मिलेगा, वो एरिया अंडर द कर्व, विच कर्व, पीवी कर्व। तो जब कभी भी तुम्हें एरिया निकालना होगा या तुम्हें वर्क डन निकालना होगा, यू नीड सिंपली टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। इज दैट क्लियर? Now, why that is going to represent the area under the curve is going to represent the work done, we will discuss little later after this. Now, then there is another term which is going to be known as law of equipartition of energy. अब ये law of equipartition of energy क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि जो भी टोटल एनर्जी, अभी तुमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी ना, व्हाट वाज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी? सर हाफ 3/2 kT। 3/2 kT किसी भी आइडियल गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी। अब जब मैं इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को निकाल रहा था तो हमारे मॉलिक्यूल्स के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे मूवमेंट करने के लिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, कितने इंडिपेंडेंट मोशन मॉलिक्यूल कर सकता है। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि चूंकि मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो बायस मोशन नहीं है, मॉलिक्यूल इक्वली फ्री है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने के लिए, मॉलिक्यूल इक्वली फ्री है वाई एक्सिस के लॉन्ग जाने के लिए, मॉलिक्यूल इक्वली फ्री है जेड एक्सिस के लॉन्ग जाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3 हिस्से में बट के आनी चाहिए। भाई ये तो टोटल है, ये तो टोटल थी ना काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैं इसको डिवाइड बाई 3 कर देता हूं तो ये कहलाती है काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और चूंकि अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल था उसके पास 3 डिग्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रीडम थे, तो जो अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी तुम्हें किसी भी मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है वो बन जाती है हाफ kT। नाउ डिपेंडिंग अपॉन gases to gases, the molecules may have different degrees of freedom. You need to understand that there are only 3 translatory degrees of freedom, but there can be different rotational degrees of freedom. So depending upon number of degrees of freedom that the molecules have, we will have its average kinetic energy. Suppose a molecule has got f degrees of freedom, then it is going to have half f kT as the total kinetic energy. तो total average kinetic energy जो उस पूरे molecules के होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ f kT। और इसमें बच्चों f क्या है, f happens to be the numbers या degrees of freedom। अगर तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, अच्छा ये तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसके पास f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आया है। अगर मैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करूं तो 1 मोल आइडियल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, हाफ f kT मल्टीप्लाइड बाई Na। तो हाफ f kT इंटू Na। अब तुम्हें याद होगा k क्या था, k था R बाई Na। याद करो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k was defined as R by
Na, तो इस k को मैंने रिप्लेस कर दिया R by Na से, तो यहां से ये Na और ये Na कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी आइडियल गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर गैस 1 मोल है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ FRT। इज दैट क्लियर? और अगर हमारे पास म्यू मोल्स ऑफ अ गैस है बच्चों, अगर हमारे पास म्यू मोल्स ऑफ अ गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ म्यू FRT। तो अब जो भी बात हम लोगों ने करी उसको मैं अगर समराइज कर दूं एक सिंपल टर्म में, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितना होता है? वो हो जाता हाफ FKT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना होता है? वो हो जाता है हाफ FRT। अभी जो मैं बात तुम लोगों से कह रहा था कि भाई जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई है उसको मैं सारी चीजों को समराइज कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल की है, सिंगल मॉलिक्यूल की है, वो कितनी है? हाफ FKT है। अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मोल ऑफ अ गैस की बात कर रहा हूं, वो कितनी हो गई? हाफ FRT हो गई है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर मैं म्यू मोल ऑफ अ गैस की बात करता हूं, म्यू मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करता हूं, तो बच्चों वो कितनी हो जाती है? हाफ FRT। तो एक मोल की थी भाई, मल्टीप्लाइड इट बाय म्यू, सो दैट विल बी हाफ इनटू म्यू FRT। तो इस तरह से ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की और गैसेस की। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और ये ध्यान रखना ये पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में मैंने बात करी है, ये पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की थी, मतलब फॉर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नॉट पर, सॉरी, फॉर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नॉट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिग्रीज सर ऑफ फ्रीडम। एक सेकंड बेटा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जी गो अहेड। सर हम ये पूछ रहे हैं सर। तो बच्चों अब तक जो बातें हमें समझ में आ गई वो ये थी कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो था फॉर अ मॉलिक्यूल, वो कितना था? क्लियर है वो? हाँ सर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो निकल के आया है हाफ FKT। और इसी के साथ साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, बच्चों ध्यान देना, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैविंग f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये कितना निकल के आया बच्चों? हाफ FRT। ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं, आई बिलीव दैट। आगे चलते हैं। अब देखो जो हमारे पास जो गैसेस होती हैं, और मेरी गैसेस जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूं सारी गैसेस आइडियल ही डिस्कस कर रहा हूं, रियल गैसेस के बारे में हम लोग का चर्चा नहीं चल रहा है। अब ये आइडियल गैसेस जो भी होती है वो 3 तरह की हम कंसिडर करके चल रहे हैं। एक मोनो एटॉमिक, यानी उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में एक सिंगल एटम का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे तरह की जो आइडियल गैस जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो होगी हमारी डायटोमिक नेचर की आइडियल गैस। और तीसरे तरह की जो गैस होगी वो होगी पॉली एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक बात है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक माय सिस्टम हैज जस्ट गॉट हंग अप। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, तो 3 बेसिक
तरह के हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। एक बार एग्जांपल जरा सा देख ले मोनोटॉमिक गैस का, किसी कोई बता पाएगा आइडियल गैस, मोनोटॉमिक आइडियल गैस के एग्जांपल? सर HENE। ठीक, वेरी करेक्ट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये आइडियल गैसेस हो सकती हैं मोनोटॉमिक टाइप की। डायटोमिक टाइप की कोई आइडियल गैस? सर O2, ऑक्सीजन, CO, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है ना। और पॉलीएटॉमिक? सर O3, O3, फॉस्फोरस, P4 आई थिंक सो। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आइडियल गैसेस हैं। अगर मैं किसी मोनोएटॉमिक आइडियल गैस की बात करूं बच्चों, तो उसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा। अब ये सिंगल मॉलिक्यूल जब ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट कर सकता है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रांसलेट कर सकता है, वो अलोंग द वाई एक्सिस ट्रांसलेट कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, और दाएं बाएं जा सकता है, इजंट इट? यानी इसके पास ये 3 बेसिक ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुए। हाँ या ना? यस सर। तो हम यहां पे इसके बगल में इसके नंबर ऑफ ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख देते हैं। अब जब तुम किसी डायटोमिक गैस की बात कर रहे हो, मान लो मैं एक सिंबल बनाता हूं ऑक्सीजन का, और ये मान लो ऑक्सीजन गैस कुछ ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना? ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल होगा, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये जब मॉलिक्यूल जाएगा तो ये भी तो एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट मूव कर सकता होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और बच्चों ये वाई एक्सिस के अलावा भी मूव कर सकता होगा, ऊपर नीचे तो जा ही सकता होगा, कोई रोक नहीं रहा है। और इसी तरह से वो जेड एक्सिस के साथ भी मूव कर सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इसके पास कितने ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? वापस से इसके पास भी 3 ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अगर मैं किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, पॉलीएटॉमिक जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा, ओजोन, तो ओजोन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा शायद वो कुछ इस तरह से होगा। कुछ ऐसा ही होगा ना? सर O डबल बॉन्ड हो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अच्छा, तो उस टाइप से चलो अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया भी पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, उसका बनाना शायद मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा ना अमोनिया का? बॉन्डिंग को मैं हटा दूं, NHH ऐसे कुछ, ठीक है ना? आई बिलीव दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया विल लुक लाइक। अब ये पूरा का पूरा जो अमोनिया गैस है, ये अमोनिया गैस भी जो तुम्हारी होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकती है, लेफ्ट राइट। भाई अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल ऊपर नीचे भी कर सकता होगा, अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल आगे पीछे भी कर सकता होगा, एक्स वाई और जेड, है ना? यस तो सर। इसके पास भी कितने डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? तो देयर आर 3 ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड वी आर इन अ कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इजंट इट? यस सर। अब आ जाओ इसके रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर लें। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं जो मोनोएटॉमिक है, उसमें सिंगल मॉलिक्यूल है, वो जब घूमेगा तो वो हमेशा अपनी एक्सिस के अबाउट ही तो घूमेगा, चाहे वो यूं घूमे, ठीक बात है बच्चों, चाहे वो यूं घूमे, चाहे वो ऐसे स्पिन करे। ये 3 अलग अलग स्पिनिंग मोशन हो सकते हैं ना? यस सर। यस सर। तो अब वो जितनी बार भी स्पिन करेगा वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट चूंकि स्पिन कर रहा है, जब कोई मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, वो तो उसके अपने एक्सिस के अबाउट मोशन है। तो ऐसे केसेस में किसी भी मोनोएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल के पास कोई भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, और इस वजह से जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितने निकल के आते हैं बच्चों?
फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो निकल के आ जाते हैं 3। इसी को F से मैं डिनोट कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात इतनी? यस सर। यस सर। अब देखो ये कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये उसकी बॉन्डिंग है और यही इसकी एक्सेस हो जाएगी, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब जरा सा ध्यान दो, इसकी जो है ये एक्सेस बन गई, ये इसकी खुद की एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल है। अब ये जो एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल है, जब वो इसके अबाउट घूमेगा तो ये एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल के अबाउट इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंटेबिलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद अपनी एक्सेस के अबाउट घूम रहा है। ये कौन सी एक्सेस है? इससे मैं कह देता हूं एक्स एक्सेस। अब बच्चों ये जो एक्सेस है, जब मॉलिक्यूल इसके अबाउट में घूम रहा होगा, जो कि वाई एक्सेस है, तो ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट हो जाएगा, क्योंकि अब मॉलिक्यूल जब वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट नहीं घूमता। और इसी तरीके से बच्चा, जब ये मॉलिक्यूल इस जेड एक्सिस के अबाउट यूं घूमेगा, देख सकते हैं ऐसे यूं पलटेगा, यूं करता हुआ, ठीक है, तो इसके पास एक दूसरा एक्सिस ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट घूमा, वो चूंकि उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, उसलिए वो रोटेशनल मोशन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंटेबिलिटी नहीं देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाँ या ना? यस सर। ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो यहां पर कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल निकले? 3 ये वाले ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशनल, तो टोटल निकल के आ गए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? सर ये जो आपने बताया कि मतलब जैसे यहाँ पर जो अपनी एक्सेस के अबाउट। अच्छा, अब जब हम किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बच्चों बात कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे अमोनिया ही का भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसकी कोई एक्सेस होगी क्या? अपनी कोई एक प्री डिफाइंड एक्सेस है? ये तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसका कोई भी एक्सेस नहीं पॉसिबिलिटी होगा डिफाइन करना, चूंकि इसके पास कोई अपना एक प्री डिफाइंड एक्सेस नहीं है। तो इसका ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा, न्यू जब रोटेट करेगा, तो भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जब वो ऐसे घूम रहा है तो भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाई एक्सिस के अबाउट, और जब वो ऐसे जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा तो भी ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसके पास टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए बच्चों? तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए 6। नाउ बेस्ड ऑन दीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नाउ आई कैन डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ, सर एक मिनट स्क्रीन मत हटाइएगा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ओके, तो 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी, वंस अगेन आई एम सेइंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3/2 FRT। क्लियर बात है बच्चों? जब मैं तो 3/2 RT। सॉरी 3/2 RT, यस, F की वैल्यू 3 हो गई तो 3/2 RT। क्लियर है ना? जी सर। अब जब मैं डायटोमिक आइडियल गैस की मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? 5/2 RT। और जब मैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, तो जो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी ऐसी आइडियल गैस की, वो हो जाएगी 6/2 RT, where 6, 5 and 3 have been borrowed from based on what their degrees of freedom, total degrees of freedom these gases molecules are possessing. Is this much clear to all of you? यस सर। सर एक Yes. बार Yes, ये sir. जो मोनोटॉमिक वाली मतलब। Okay, so this was all for this lecture. On the next turn or on the next lecture, we are going to discuss about internal energies of ideal gases, and then we will derive the internal energy expression, and thereby we would move on to different type of isothermal process. Now, this was all for today.